एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਸੋਹਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਸੋਹਰ, ਪੁਨੀਤਾ ਸੋਹਰ, ਸੰਜੀਵ ਸੋਹਰ, सरिता सोहर, पूनम मल्होत्रा, सतीश मल्होत्रा, जितिन सोहर, कमल सोहर, वरुण सोहर, रुचि सोहर, डॉक्टर विक्रम सोहर, डॉक्टर श्वेता सोहर, मधुर सोहर, नमिता सोहर, पंकज शिवा मल्होत्रा, शीतल मल्होत्रा, राघव मल्होत्रा, आरोही मल्होत्रा, स्वाति गैंट, ध्रुव गैंट, नमन सोहर, फ्रिया एंजल सोहर, लवित्र सोहर, हिया सोहर, ऋषिव सोहर, अग्रीवा सोहर, जियाना सोहर, अक्षाइनी मल्होत्रा, कियांश गैंट ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती चंद्रकांता सोहर जी का जन्म पिता श्री बरकत राम नैयर जी के घर माता श्रीमती तारावंती नैयर जी की कुखों पाकिस्तान विखे 9 मई 1935 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਆਣ ਵਸਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਤੌਰ HT ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿਲਰਗੰਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1958 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਹਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਸੋਹਰ, ਸੰਜੀਵ ਸੋਹਰ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਪੂਨਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਰਾਜੀਵ ਸੋਹਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸੋਹਰ ਜੀ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਸੋਹਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਸੋਹਰ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਸੋਹਰ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨਮਨ, ਫ੍ਰਿਆ ਐਂਜਲ, ਲਵਿਤਰ, ਹੀਆ, ऋषिव, अग्रीवा, जियाना, अक्षाइनी के अंश नाल महक रही है।
कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अक्षर का प्यारा नाम, अक्षर का प्यारा नाम, अक्षर का प्यारा नाम, अक्षर का प्यारा नाम। भव से तारे राम का नाम, भव से तारे राम का नाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मुक्ति का दाता प्यारा नाम, मुक्ति के दाता प्यारा नाम, मुक्ति का दाता प्यारा नाम, मुक्ति के दाता प्यारा नाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। परमात्मा कहते हे जीव, अंत में मनुष्य होने इसलिए तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के पश्चात अनेक प्रकार से सत्कर्म करते हुए, परोपकार करते हुए, सेवा करते हुए, भगवान के नाम को स्मरण करते हुए, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए और अंत में मेरे धाम को प्राप्त हो। प्रभु प्रेमियों, मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अंत में भगवान की कृपा से हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हो। हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने मनुष्य जीवन को मोक्ष द्वार लिखा है। यही एक मोक्ष को प्राप्त करने का दरवाजा है। ये मनुष्य जीवन ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाकी किसी योनि में
ये कोई उन्हें नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि और विवेक दिया है। जिस बुद्धि और विवेक के आधार पर मनुष्य से कर्म करता है, जिन कर्मों के आधार पर वह सदगति को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अंत में हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, हे जीव, मैं तुम्हें संसार भेजने से पहले चंद उपदेश दे रहा हूं, उन पर तुम मनन करना। मैं तुम्हें सुंदर मनुष्य रूपी शरीर प्रदान कर रहा हूं और इस शरीर में तुम्हें 2 नेत्र दे रहा हूं। इन नेत्रों से तुम मेरे स्वरूप को देखो। मैं तुम्हें वाणी दे रहा हूं, इस वाणी से परमात्मा का गुणगान कर रहा हूं। 2 कान दे रहा हूं, इन कानों से हरि कथाओं को श्रवण करना। 2 हाथ दे रहा हूं, इन हाथों से दान पुण्य करना। 2 पांव दे रहा हूं, इन पांव से चलकर तीर्थों का भ्रमण करना। इन सभी कर्मों यदि तुम करोगे, ये जीवन तुम्हारा सफल होगा ही, आने वाला जीवन भी तुम्हारा सफल होगा। प्रभु प्रेमियों, हम इस संसार में आते हैं और कर्मों को भोगते हुए अंत में परमात्मा के चरणों में जा बसते हैं। लेकिन जीव के जो अंतिम क्षण परिवार के साथ होते हैं, वे अंतिम क्षण परिवार के लिए बड़े कष्टदायी, बड़े दुखदायी, बड़े असहनीय होते हैं। उन क्षणों का वर्णन इस प्रकार से किया। होती है भयानक बड़ी जिंदगी की आखिर घड़ी, होती है भयानक बड़ी जिंदगी की ये आखिर घड़ी। मरने वाला उमरिया को मरने वाला उमरिया को मांगे, पर मिले ना पलक घड़ी जिंदगी की आखिर घड़ी। तो जीवन के अंतिम क्षणों में यदि हम परमात्मा से 2 पल का भी समय मांगते हैं, तो प्रभु प्रेमियों, वे 2 पल भी हमें प्राप्त नहीं होते। जब हम माँ के गर्भ में आते हैं प्रभु प्रेमियों, तो विधाता हमारे भाग्य में निश्चित सांसें देते हैं और उतनी ही सांसें हम इस संसार में ले सकते हैं। और जैसे ही सांसें संपन्न होती है प्रभु प्रेमियों, हमें इस संसार छोड़ना है। उसके पश्चात 1 पल भी हम इस संसार में नहीं ले सकते। होती है भयानक बड़ी जिंदगी की आखिर घड़ी, रहते थे जो दिल में सदा, रहते थे जो दिल में सदा, चलती ही मोड़ के। जीवन में सबसे प्रेम होता है, सबसे लगाव होता है। पूज्य माता जी की, उनके परिवार में इनके पुत्र श्री राजीव सोहर जी, पुत्र वधू श्रीमती सुनीता जी, दूसरे पुत्र श्री संजीव सोहर जी, पुत्र वधू श्रीमती सरिता जी, इनकी पुत्री श्रीमती पूनम जी, दामाद श्री सतीश मल्होत्रा जी, इनके पोते हैं जतिन जी और वधू श्रीमती कमल जी, दूसरे पोते हैं वरुण जी और बहू श्रीमती रुचि जी, इनके तीसरे पोते हैं डॉक्टर विक्रम जी और वधू श्रीमती डॉक्टर श्वेता जी, पोते श्री मधुर जी, वधू श्रीमती अमिता जी, इनके दोहरे हैं श्री शिवाजी, वधू श्रीमती सीता जी, राघव जी, श्रीमती आरोही जी, स्वाति जी, श्री इनकी दोती हैं स्वाति जी और दामाद श्री ध्रुव ज्ञान जी, इनके पड़पोते हैं नमन, लव, ऋषि, ज्ञांश, फरिया, चेरी, अक्षयनी, अंजुमा, जियाना, सगे संबंधी, इष्ट मित्रगण, सबसे प्रेम होता है, सबसे लगाव होता है।
प्रभु प्रेमियों, ये प्रेम, ये लगाव, ये नाते, ये रिश्ते ये कब तक है? जब तक आत्मा इस शरीर में है, तभी तक सारे नाते रिश्ते हैं। और प्रभु प्रेमियों, जैसे आत्मा इस शरीर का त्याग करती है, ये शरीर आत्महीन होकर के धरती पर गिर जाता है। फिर किसी नाते या रिश्ते से नहीं पुकारते हैं, केवल शब्द नाम से पुकारते हैं। सभी भाई, बांधव, इष्ट मित्र, सगे संबंधी, परिवार वाले सभी यात्रा में सम्मिलित होकर के शमशान भूमि तक जाते हैं। वहां पर चिता बना करके उसके ऊपर शव को रख करके अग्नि से दहन करते हैं। छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। हमारा ये पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, इन पंच तत्वों में शरीर विलीन हो जाता है और आत्मा उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाती है। उससे आगे की यात्रा जीव को सकर्म के आधार पर प्राप्त होती है। रहते थे जो दिल में सदा, रहते थे जो दिल में सदा, चले ही मोड़ के रिश्ते नातों की टूटी लड़ी, रिश्ते नातों की टूटी लड़ी, जिंदगी की आखिर घड़ी होती है भयानक बड़ी, जिंदगी की आखिर घड़ी। भाई बंधु रहे देखते, भाई बंधु रहे देखते, उड़ जाए पंछी कहाँ। परिवार को तो इतना समय मिला ही, किसी को पता भी नहीं चला कभी कभी क्या हुआ, कुछ पता नहीं लगा, कुछ नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी, कुछ नहीं। कब आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया प्रभु प्रेमियों, ये किसी को पता नहीं चला। और उस आत्मा के लिए अंतिम श्रद्धांजलि स्वरूप हमारे पास केवल 2 मूल आंसू शेष रह जाते हैं, जिन्हें अंतिम श्रद्धांजलि स्वरूप उस आत्मा को भेंट करते हैं। भाई बंधु रहे देखते, भाई बंधु रहे देखते, उड़ जाए पंछी कहाँ, आंसू ने लगा दी झड़ी, आंसू ने लगा दी झड़ी, जिंदगी की आखिर घड़ी होती है भयानक घड़ी, जिंदगी की आखिर घड़ी। मौत देखे ना छोटा बड़ा, मौत देखे ना छोटा बड़ा, आ जाए तो डरती नहीं। तो मृत्यु किसी को नहीं देखती है। मृत्यु ये नहीं देखती है कि ये छोटा है, मृत्यु ये नहीं देखती है ये गर्भ में है, मृत्यु ये नहीं देखती है इसकी व्यवस्था है, मृत्यु ये नहीं देखती है इसका कितना काम शेष है। मृत्यु कुछ नहीं देखती। जब जिसका समय आता है प्रभु प्रेमियों, मृत्यु उसको अपने साथ ही लाती है। हमारे जन्म के साथ ही मृत्यु का भी जन्म हो जाता है, और जन्म और मृत्यु का खेल तब तक चलता है जब तक मृत्यु जीव को अपने साथ नहीं ले जाता। प्रभु प्रेमियों, इस संसार में केवल 2 नाम ही सत्य हैं, एक है परमात्मा का नाम और एक है मृत्यु। जो भी जीव, जो भी प्राणी संसार में आता है उसको एक दिन ये संसार छोड़ करके अवश्य जाना होता है, एक अटक सत्य है। जीवन के अंतिम क्षणों में उसके लिए एक अंतिम आवाज आती है, चले रे हंसा अमर लोक को
यहाँ न कोई तेरा है, जग का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा है। जग का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा है। चल रे हंसा अमरलोक को, यहाँ न कोई तेरा है। ए जी, अब तुझे मेरे साथ चलना है। इस संसार में तेरा समय संपन्न हो चुका है। ऐसी आवाज आती है प्रभु प्रेमियों, और आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा का कभी मरण नहीं होता है। प्रभु प्रेमियों, आत्मा तो ऐसी है जैसे बंद कमरे में एक सूर्य की किरण आती है। उस किरण के लिए वह काटना चाहे तो नहीं काट सकते, उस किरण के लिए वह जलाना चाहे तो नहीं जला सकते, उस किरण के लिए वायु अपने साथ उड़ाना चाहे तो नहीं उड़ा सकते। ऐसे आत्मा अजय है, आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा को कभी मरण नहीं होता। मौत देखे न छोटा बड़ा, मौत देखे न छोटा बड़ा, आ जाए तो डरती नहीं। मौत सबके गले है पड़ी, मौत सबके गले है पड़ी। जिंदगी की आखिर घड़ी होती है भयानक बड़ी। जिंदगी की आखिर घड़ी। गुण गोविंद गायो नहीं। महाराज जी कहते हैं, इस धरती पर वो मरता है जिसने उस प्रभु का नाम न लिया। इस धरती पर वो मरता है प्रभु प्रेमियों जिसने कभी अच्छा कर्म न किया हो। इस धरती पर वो मरता है जिसने समाज की सेवा न की, जिसने प्रभु का नाम लिया, जिसने सुंदर कर्म किए हो, जो अपने बेटों के आगे, पोतों के आगे अपनी सभी धर्म का पालन करके चली गई हैं। उनका मरण नहीं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मरण नहीं है माता जी का। ऐसी आत्मा परिवार से तो बहुत वर्षों से बहुत स्नेह है, और माँ ने परिवार को धर्म से जोड़ा हुआ है। तो प्रभु प्रेमियों, शास्त्रों में जो लिखा है कि गृहस्थ में कैसे जीना है, शास्त्रों में जो लिखा है कि गृहस्थ में संत कौन है, ऐसा ही जीवन माता जी ने जिया और सारे परिवार को हरा भरा करके प्रभु के चरण में चली गई है। देखिए, हमारे परिवार तो बहुत धार्मिक परिवार है। प्रभु प्रेमियों, माता जी के लिए गीता जी के ऊपर प्रवचन रखे हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं, प्रभु प्रेमियों, भगवान कहते हैं, अर्जुन, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विसृजन्ति गर्भस्तस्यैव देहिना। प्रभु प्रेमियों, देखो, आज हमारे इस परिवार के लिए, जो हमारा सौर परिवार है, माता जी ने, परिवार ने इतना स्नेह था कि माता जी ने, चाहे वो बहू हो, चाहे परिवार में पर बोधो हो, उनको बेटी के समान रखा।
और परिवार ने हमेशा, चाहे हमारी बहन जी हो, चाहे उनके पुत्र वधू हो, माता जी का बड़ा सम्मान किया। समय पुत्रों ने तो करना था, लेकिन पुत्र वधू ने माता जी ने बहुत सम्मान परिवार से लिया है और परिवार को अपने बेटों के जैसे, अपने बेटों जैसा बहु पुत्र वधुओं को प्रेम किया है। इसलिए प्रभु प्रेमियों, आज परिवार के लिए बड़ा दुख है, क्योंकि आज परिवार के ऊपर से एक माँ का गर्भस्थ चला गया है। माँ का जाना बहुत बड़ा दुख है। मैं तो बार बार अपने प्रवचनों में कहता हूँ कि देखो, संसार का सबसे छोटा और सबसे बड़ा महान नाम है माँ। है तो छोटा है। हम लोग संसार में हैं, प्रत्येक नाते पे हमारे 2-2, 3-3 अक्षर लगते हैं। लगते ना, पिता हो, पुत्र हो, माने 2 अक्षर चलते हैं, 3 अक्षर चलते हैं। लेकिन प्रभु प्रेमियों, संसार में हमारा नाता एक माँ से है। माँ का एक अक्षर है जिसपे एक ही नाम है, क्या? माँ। बाकी सब में 2-2 अक्षर है। एक माँ का ही नाम है प्रभु प्रेमियों, जो सबसे छोटा लेकिन सबसे बड़ा महान है। माँ का मतलब समझे आप? माँ का मतलब है प्रभु प्रेमियों ममता। माँ का मतलब है जिसकी सारी ममता, जिसका प्रेम अपने परिवार के लिए है। माँ और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है प्रभु प्रेमियों। देखो ना, आप चाहे माँ लिखो चाहे ओम लिखो, कोई अंतर है? एक ही मात्रा है। चाहे माँ लिखो चाहे ओम लिखो, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब समझा कि अगर आपके घर में माँ है, देखो हम तो इस घर में जब भी जाते थे तो माता जी का वो सम्मान था। हमारी बहन जी बड़ी धन्य हैं जिन्होंने माँ के साथ सुंदर जीवन बिताया। और देखो माता जी कैसे हैं। बाबूजी मुझे मिले, परसों मिले थे मुझे बाबूजी। मैंने कहा क्या बात होगी? कहने लगे शास्त्री जी कोई बीमार नहीं थी, हमें सोमवार को जाना था, हमको पहले कह दिया हरिद्वार चले जाओ, अपनी पूजा पाठ कर लो, कोई बीमार नहीं, कोई कुछ नहीं, बस। क्योंकि सच में महान आत्मा थी ना, उनको पता था कि मेरा समय कितना है। जिन्होंने बच्चों को कह दिया कि आप सोमवार छोड़ो, शुक्रवार की चली जाओ, आप अपनी पूजा कर लो, ताकि मैं आपके श्रावण की पूजा को भी विघ्न न कर सकते। कोई आत्मा, महान आत्मा न करो। तो वेद भी कह रहे हैं, शास्त्र भी कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, माँ और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर उस परमात्मा की है, उतनी ही बड़ी कृपा हमारे ऊपर किसकी है? माँ की भी है। ध्यान रखना। अगर आपके घर में माँ है प्रभु प्रेमियों, ये बड़े भाग्यशालियों को मिलती है माँ। बाद में तो सब कहते हैं माँ माँ। सेवा करके, अपने साथ रख करके आशीर्वाद लेना, ये सबकी बस की है प्रभु प्रेमियों। वेदों ने कहा है कि सर्व तीर्थमयी माँ। वेद कहते हैं कि अगर आपके घर में माँ है और आप उसका सम्मान कर रहे हो माँ का, तो वेद कहते हैं कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके घर में माँ का सम्मान है वो देवताओं की पूजा है। और सर्वदेवमयी पितुः, अगर आपके घर में पिता है और आप पिता का सम्मान कर रहे हो, तो देवताओं की पूजा आपके घर में हो रही है, क्योंकि सर्वदेवमयी पितुः। तो सजनो, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, चाहे कोई भी ग्रंथ ले लो, कोई
महापुरुषों का ग्रंथ उठा लो, माँ और पिता का आशीर्वाद बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होता है। प्रभु प्रेमियों, अगर माँ की सेवा हो गई तो तीर्थ हो गई, अगर माँ का सम्मान हो गया तो पूजा हो गई सब देवता। तो मैं ये कह रहा था प्रभु प्रेमियों कि माता जी का तो मरण नहीं हुआ, वो तो मोक्ष को प्राप्त कर गई, लेकिन आज हमारा ये सहर परिवार एक माँ के वरद हस्त से वंचित हो गए हैं। ये बहुत बड़ा दुख है कि माँ, आप सब बैठे हैं यहाँ पर, सब बेटे बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं। माँ उस शब्द का नाम है प्रभु में, माँ वो ममता है कि आप कभी अनुभव करते होंगे, अगर आप कभी घर में लेट से आए होंगे, कभी देर हो गई होगी, तो राजीव जी और संजीव जी, अगर आप कभी घर में लेट से आए होंगे तो अंदर से सबसे पहले आवाज माँ की आई होगी कि बेटा आ गए। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, माँ परमात्मा का ही स्वरूप है। आप लोग घर से जाते हो ना, तो परिवार के लोग अपनी लिस्ट देते हैं, भाई ये सामान ले आना, देना ही पड़ेगा, घर को चलाना है। और आपके घर में माँ होती है प्रभु प्रेमियों, ये बच्चे हैं इनको शांत कर दो। बच्चों का मतलब है जिनको बचा के रखना पड़ता है ना, उनको बाहर ले जाओ, बाहर बड़ा भ्रांता है। तो प्रभु प्रेम में मैं क्या कह रहा था कि आप लोगों का अनुभव, ये तो शास्त्र है ना, लेकिन आपका अनुभव, आप घर से सुबह जाते हो तो घर के सब सदस्य अपने अपने लिस्ट देते हैं, ये भी ले आना, वो ले आना, देना है, घरवार है। लेकिन सज्जनों, जब आप अपनी माँ से पूछते हो कि माँ आपके लिए क्या ले आए, तो सच कहना, माँ क्या कहती है? बोलो। माँ कहती है कि बेटा मेरे लिए कुछ नहीं लाना, मेरे पास सब कुछ है। सज्जनों, माँ अगर कभी झूठ बोलती है केवल अपने बेटों के लिए कहती है, ताकि मेरे बेटों को कभी दुख ना हो, चाहे उसके पास है या नहीं। आप अगर मांगोगे तो नहीं कहेंगे बहुत कुछ है, लाने की जरूरत नहीं, ना कर देंगे। और सज्जनों, जब आप घर से जाते हो तो देखो घर के सब लोगों ने लिस्ट दी है, बच्चों ने कहा ये ले आना, सबने लिस्ट दी है आपको। आप घर से जाते हो, हर व्यक्ति अपनी लिस्ट का इंतजार करता है, शाम को ये आएगा, शाम को वो आएगा। लेकिन आप अपने घर में उस माँ से पूछो वो किसका इंतजार कर रही है? सजनों, माँ केवल अपनी बेटा बेटी का इंतजार करती है, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, उसका नाम माँ है। आप घर में आते हो, सब अपना सामान ढूंढते, आ गया ठीक है, लेकिन माँ आपके चेहरे को पढ़ती है और आपके चेहरे को पढ़ के देखते हैं मेरा बेटा दुखी है या सुखी। आपका दुख कोई नहीं पहचान सकता, केवल माँ। और अपने पास बुला करके अपना हाथ रखती है और बेटा बेटी का दुख दूर करके, उसका नाम माँ है। उस माँ के आशीर्वाद से वंचित होना बहुत बड़ा दुख है, ये बहुत बड़ा दुख होता है। अन्यथा प्रभु देव भगवान गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन आ ब्रह्म लोके, भगवान कह रहे हैं अर्जुन अरे ये मृत्यु लोग छोड़ ले, ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ती है। ब्रह्मा देवता मृत्यु लोग तो छोड़, करोड़ों वर्ष वाला ब्रह्मा जी की भी एक दिन मृत्यु हो जाए, मृत्यु किसी को नहीं छोड़। हमारे महापुरुषों ने प्रभु प्रेम जहां पर हम लोग रह रहे हैं ना, इसको संतों ने क्या कहा पता? संतों ने इसको दुनिया कहा है।
और दुनिया का मतलब होता है प्रभु प्रेमियों, बेटा ये पानी भारी रखो, भारी बनाओ, बाद में पिएंगे, अंदर नहीं बेटा, अंदर नहीं, बाहर बनाओ। प्रभु प्रेमियों, हमारे संतों ने इसको क्या कहा है? दुनिया। और दुनिया का मतलब होता है प्रभु प्रेमियों, ध्यान से सुना, 10 मिनट है। दुनिया का मतलब होता है प्रभु प्रेमियों जहां पर 2 काम होते हैं। आप कोई सा भी लगा ले, यहाँ पर अगर जन्म है तो मरण भी है। यहाँ पर कोई भी काम लगा लो, ये नहीं कि जन्म मरण है। प्रभु प्रेम में अगर यहाँ पर सुख है तो दुख भी है, अगर यहाँ पर लाभ है तो हानि भी है, अगर प्रभु प्रेम में यहाँ पर अच्छा है तो बुरा भी है। जहाँ पर 2 काम होते हैं उसका नाम क्या है? दुनिया। दुनिया का मतलब है प्रभु प्रेमियों जिसके 2 किनारे हैं। एक नैया में बैठ करके जीव इस संसार में आता है प्रभु प्रेमियों, और एक नैया में बैठ करके संसार से चला जाता है। अंतर यही है ना, कोई आगे है प्रभु प्रेमियों, कोई पीछे है। अभी हमारे स्त्री परिवार में हमारा बालक चला गया, बड़ा दुख हुआ जब मैंने कल सुना, क्या अवस्था थी। लेकिन प्रभु प्रेमी यही तो दुनिया है, इसी का नाम तो दुनिया है। और इसी के लिए ब्रह्मा कह रहे हैं, भगवान गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन ब्रह्म भुवनान लोकी। अर्जुन मृत्यु क्या है? बोले जातस्या ही ध्रुवम मृत्यु। प्रभु प्रेमियों, आप और हम लोग आज तक यही जानते हैं कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, यही कहते हो ना। हर व्यक्ति कहता है अकेले आएंगे, अकेले जाएंगे। लेकिन गीता पढ़ो सजनों, गीता कह रही है कि जातस्या ही ध्रुवम मृत्यु। हम अकेले नहीं आए प्रभु। जब हम इस धरती पर आए थे तो हमारे साथ पीछे पीछे मृत्यु का भी जन्म हो गया था उसी समय। कोई अकेला नहीं आता, ध्यान रखना। गीता में भगवान कह रहे कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं प्रभु प्रेमियों, तो उसी समय हमारे साथ मृत्यु भी जन्म ले लेती है। तो स्वामी जी ने लिखा है ना कि कल काल उठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट जिनी न जिनी, भजले अरे नाम अरी रचना, तो अंत समय में हिली न हिली। प्रभु प्रेमियों, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके पीछे कौन जन्म लेता है? सजनों, उसी दिन मृत्यु का भी जन्म हो जाता है, पीछे से खड़ी हो जाती है। ओ जाने वाले तेरी याद आए, एक पल भी तेरे बिन रह न पाए। हर पल आँखें तेरी राह निहारे, कब आओगी तुम दिल पुकारे। हर पल आँखें तेरी राह निहारे, कब आओगी तुम दिल पुकारे। सूरज छिप चुका, तारे भी आए, चांद भी आया, पर तुम ना आए। ओ जाने वाले तेरी याद आए, एक पल तेरे बिन रह न पाए। जैसे पंछी तड़पे पंख बिना, वैसे तड़पे हम भी तुम बिना। जैसे पंछी तड़पे पंख बिना, वैसे तड़पे हम भी तुम बिना। तेरा
याद आए, एक पल भी तेरे बिने रह न पाए। एक पल तेरे बिने रह न पाए। और परिवार के पास कभी भी कोई धार्मिक कार्य के लिए जाओ तो परिवार कभी मना नहीं कर सकता। प्रभु प्रेम यही माता जी बहुत बड़ी कमाई करके गई हैं, जिन्होंने अपने परिवार को, अपने बेटों को, सारे परिवार को धर्म से जोड़ के रखा। अच्छे परिवार का मान है, सम्मान है। आप जिस विशाल मंदिर में बैठे हैं ना, हमारे कोचर साहब आए हुए हैं जी, मैंने आपसे कहा था कि एक बार परिवार से कहा था कि हम लोग दांतों का हॉस्पिटल खोल रहे हैं। तो मेरी बहन जी ने कहा कि शास्त्री जी, माता जी का तो एक ही संकल्प है, आप चिंता न करो, हमने जितना भी खर्च होगा हम हॉस्पिटल बना के देंगे। तो सामने आज भी हमारे परिवार का दिया हुआ मशीनों के द्वारा न जाने कितनों का कल्याण हो रहा है। तो हमारी एक तो हमारी मंदिर कमेटी की ओर से, सबका नाम लेना है, मंदिर कमेटी की ओर से प्रार्थना पत्र आया है प्रभु प्रेमी। और हमारे रिंकू कोचर जी, शिव कुमार जी हमारे तो यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे और भी मेंबर आए हुए हैं। तो मैं कोचर साहब से कहूँगा कि सबसे पहले आप मंदिर की ओर से बाबू जी को सुरपा भेंट करेंगे। मंदिर की ओर से सुरपा भेंट कर रहे हैं। सारे मंदिर कमेटी की ओर से महान आत्मा को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। प्रभु प्रेमियों, आओ प्रभु प्रेमियों, आप हम सब लोग भी, क्योंकि समय के अनुसार चलना होता है, समय तो है, आओ हम सब लोग कुछ क्षण के लिए मौन धारण करते हैं प्रभु प्रेम। और आप हम सब अपने अपने आराध्य से, अपने अपने इष्टदेव से और अपने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जिन महान आत्मा को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं, प्रभु उन महान आत्मा को सदैव अपने ही चरणों में वास देना। और हमारा ये परिवार जिस मार्ग पर माता जी ने चलना सिखाया, हमारे परिवार को उस मार्ग पर चलने की शक्ति देना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु प्रेमियों, माता जी हमारी चंद्रकांता जी स्वरूप, उनका जो सुंदर परिवार है, राजीव जी बड़े बेटे, पुत्र वधू सुनीता जी, पुत्र संजीव जी, पुत्र वधू सरिता जी हैं, उनकी बेटी पूनम जी, दामाद सतीश जी मल्होत्रा, पोते जितिन
कमल, वरुण, रुचि और पोते डॉक्टर विक्रम जी, पुत्र वधु श्वेता, पोते मधुर और नमिता, दोते शिवा, शीतल, राघव, अपरोही, स्वाति, ध्रुव, गेंदा, नमन, लव, ऋषभ, कंसब। बहुत सुंदर परिवार है माता जी का। अक्षायनी, अग्रिम, ये सुंदर परिवार है। फरिया, जियान, ये सब होते धोते मनी माता जी का इतना सुंदर परिवार है। परिवार के लिए, माता जी के लिए कुछ श्रद्धांजलि पत्र आए हैं। पहले हम उनका नाम लेंगे, उसके बाद गीता जी को रुमाला, आरती और विषम पगड़ी। सबसे पहले जिस विशाल मंदिर में आप बैठे हैं, यहाँ से शोक प्रस्ताव आया है। श्री बाबा कुलवंत भल्ला जी, श्री बालाजी प्रेम आश्रम निखिल विद्यालय पखरवा रोड लुधियाना से भी आया है। रुद्रजीत कौर मोंगा जी बीजेपी महिला मोर्चा, इनकी तरफ से भी आया है। विनीत पाल सिंह मोगा बीजेपी, इनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री सरदार कन्वरजीत सिंह जी मोगा, सिख वेलफेयर बोर्ड लुधियाना, यहाँ से भी। ये हमारे कुछ प्रस्ताव आए थे, सभी सज्जन आए हुए हैं। तो परिवार आप सब लोगों का आभारी है, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस प्रार्थना सभा में दिया है। परिवार का निवेदन है कि जिन्होंने खाना नहीं खाया है तो बगल वाले हाल में खाने की व्यवस्था है, आप सबने खाना खा के जरूर जाना है। कर चाय का प्रसाद, ये तो पानी पुनी तो पीना ही पीना है, लेकिन जिन्होंने खाना नहीं खाया बगल वाले हाल में, आप परिवार का निवेदन है आप सभी खाना खा करके जाएंगे। आओ राजीव जी और संजीव जी, आप पहले गीता जी को माला, इधर रसम पगड़ी होगी। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा किनू, मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा किनू, होर सुनावा किनू, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल।